اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے خصوصی پیشکش پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں دنیا بھر سے آپ جہاں کہیں بھی ہے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے کال کر سکتے ہیں، اور ہمارا نمبر دیے گئے اسکرین پہ موجود ہے۔ کال کر کے زیارت سید شہداء علیہ السلام پڑھنے کی سعادت اور جو دعائیں ہیں ان کو مولا کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر موجود ہے آپ کی آواز کو بین الحرمین کربلا مقدسہ تک پہنچانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا باب اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الرسولین، السلام علیکہ ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و ابیک، السلام علیکہ وعلی مستشہدین معک یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، السلام علیکہ یا ابو الفضل عباس سیدی و مولائی یا ابن امیر المومنین و ابن سید الرسولین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ صاحب عصر والزمان خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ مظہر الایمان، السلام علیکہ شریک القرآن، السلام علیکہ امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک سال اللہ مخرجک وظہورت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا امام حسین، سب سے پہلے میرا سلام قبول کیجیے مولا، اور میرے ماں باپ کی مغفرت کیجیے گا مولا، میرے گناہوں کو بخش دینا، میرے غلطیوں کو معاف کر دینا میرے معبود۔ اور میں جو نماز روزہ کرتی ہوں پالنے والے، میں اس ڈر سے نہیں کرتی کہ پالنے والے کہ تو مجھے دوزخ میں ڈالے گا، میں اس ڈر سے کرتی ہوں پالنے والے تو عبادت کے لائق ہے، اس لیے تجھے سجدہ کرتی ہوں، اور تو مجھے اس کا اچھا اجر دینا میرے معبود۔ اور مجھے کربلا بلانا مولا، حضرت عباس سے کہیں اپنے بھائی سے، مولا مشکل کشا کے صدقے میں میری مہر لگا دیں، میں کربلا زیارت کرنے کے لیے آ جاؤں، جلدی اربعین سے پہلے آ جاؤں یا اربعین پہ آ جاؤں میرے مولا۔ جتنے بیمار ہیں ان کو سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، جتنے مدفون شیعہ بوسیدہ ہڈی والے ان کی دلوں میں، ان کی ہڈیوں میں مسرت کی روح پھونک دے پروردگار، جتنا اسیر ہے ان کو رہا فرما، جتنے بھوکے ان کو سر سراب کر دے، جتنے بے اولاد ہیں پروردگار ان کو بیوی شہر بانوں کے شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں اولاد عطا کر ان کو پروردگار، اور مولانا کو بھی پروردگار اولاد عطا کر، اور میرے خطاؤں کو بخش دیں، میری غلطیوں کو معاف کر دیں، مجھے سکون عطا کریں پروردگار، میری بے چینی ختم کر دیں، امام زمانہ کا ظہور جلدی کر دیں، اور امام زمانہ کے جانبداروں میں شامل کریں۔ مولا کا ظہور ہو جائے تو ہم مولا کی بادشاہ ہیں اپنے آپ، اور کل مومن کا پروردگار سب کی باتیں برلائیں، سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور امن چین ہو جائے، ہر جگہ بھائی چارے کی فضا شامل ہو، اور ناگہانی آفتوں سے بچانا پروردگار، ناگہانی بیماری سے، وبا سے بچانا، روحانی بیماری سے بچانا، جسمانی بیماری سے بچانا، پالنے والے جتنے سب کی پریشانیاں دور کر دینا میرے معبود۔ امام حسین کے زمرے میں شامل کرنا، امام حسین کے رونے والوں میں شمار کرنا، امام حسین کے زواروں میں شامل کرنا، باب حسین کے دروازے سے امام ہمیں جنت میں داخل کرنا پروردگار، اور امام حسین کی شفاعت نصیب ہو بار الہ۔
इलाही आमीन। से मुशर्रफ फरमाना, सबकी परेशानियां दूर करना, सबकी मुरादें बरलाना, मेरी मुराद भी बरलाना परवदिगार। मेरा बेहतरीन दोस्त है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, मेरे महबूब मेरे लिए आसानी कर दे, रास्ता खोल दे परवरदिगार, और इस काम को सहल कर दे बारिला, और उनकी भी परेशानी दूर हो जाए, खुदा करे सारी परेशानियां दूर हो जाए मौला। हज़रत इमाम हुसैन आपकी नगरी में बैठे हुए हैं, सब मुश्किल आसान हो जाए, मेरी मुश्किलें भी आसान कर दे मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फराजहुम। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए और इंशाअल्लाह करबला आने की तौफीक हासिल हो। अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहे। अल्लाह आपकी मुरादों को पूरा फरमाए। यकीनन हमारे जितने भी मुश्किलात होते हैं, हमारे बुज़ुर्गान का भी यही सिलसिला रहा और हमारा भी यही शेवा है कि जो भी मुश्किलात होते हैं उनको अपने मौला के दरगाह में पेश कर देते हैं। और बिलखुसूस सैयद शुहदा मज़लूम करबला हज़रत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जो हमारे लिए मशअले राह भी है और हमारे एतक़ाद का मरकज़ भी। कोई ऐसा शिया नहीं जो इस चीज़ पर यकीन न रखता हो कि हमारी दुनियावी और उखरवी मुश्किलात को सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के दरगाह से हमें सकून हासिल होता है और हमारे दुनियावी और उखरवी जितनी भी हवाइज होते हैं वो पूरे होते हैं। नफ्स की पाकीज़गी सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम से है, रूह में ताज़गी ज़िक्र सैयद शुहदा से है, दीन में ताज़गी सैयद शुहदा से है, दीन में बहार जो है वो आयाम मुहर्रमुल हराम जो कि आयाम शहादत हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यही दीन का बहार है जो शुआरा हज़रात, उलमा हज़रात, मुहद्दिसीन ने इस चीज़ों की तरफ दक़ीक़ तरीके से इशारा कर दिया। और बिलखुसूस हमारे उर्दू ज़बान के मारूफ़ शायर अल्लामा इक़बाल, जिसने बड़े ख़ूबसूरत तरीके से बयान कर दिया कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यकीनन ये अयाम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम इस्लाम की वो मज़बूत सतून है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो क्या बल्कि उन्हीं का ज़िक्र जिससे मोमिनीन को ताज़गी मिलती है, मोमिनीन की ईमान को ताज़गी मिलती है, इस्लाम को ताज़गी मिलती है। और बैनुल हरमैन वजह यही है कि जब आप दूर दराज इलाके में बैनुल हरमैन का नाम तक सुन ले तो एक दफ़ा इंसान का वजूद लरज़ जाता है, दिल में एक अजीब ख्वाहिश हो जाती है कि काश हम भी करबला में होते। इसके वजूहात यही है कि पाक माओं की पाक और ताहिर दूध का असर है, उनकी तरबियत का असर है कि जो ही कोई मोमिन हत्ता नाम सुन ले, करबला का नाम जो आया, आँख से आंसू जारी हुए, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, अजीब कैफियत उसकी हुई, रंग जर्द हो गया। देखने वाला हैरान हो जाता है कि ये शिया इस कदर मोहब्बत करते हैं, क्योंकि सैयद शुहदा मज़लूम करबला अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूरी दुनिया के लोग एक ख़ास अक़ीदत रखते हैं, लेकिन शिया उसका नाम सुनते ही
रंग जर्द हो जाता है, रंग जर्द हो जाता है। वो तड़प, वो इश्क जो शियायान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम में अपने मौला के लिए है, यकीनन कोई सोच तक नहीं सकता। लोग उसको अपना आइडियल मानते होंगे, हमारे तो वजूद में जो कल्ब है वो सैयद शुहदा हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और फिर लोग ये कहते हैं कि शियों का तो काम ही यही है कि सारी ज़िंदगी अज़ादारियाँ करते हैं, सारी ज़िंदगी रोते रहते हैं, दुश्मनान अहले बैत का मस्खरा बन जाता है, बातें करते हैं, लेकिन शिया एहसास तक नहीं करता, उसके लिए मुहिम ही नहीं है, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसी किसी की बातों की कोई तकलीफ़ ही नहीं होती। क्योंकि जितना लोग मस्खरा करेंगे, जितने मुश्किलात ज़्यादा होंगे, आज़ादारी का सवाब बढ़ता रहेगा, सैयद शुहदा से मज़ीद मानूसियत होती रहेगी, यजीद का चेहरा साफ़ होता जाएगा, साफ़ दिखाई देगा, यही तो है ज़माने का यजीद है, यजीद का बेटा है। हमारे लिए शराफ़तों का मरकज़, शराफ़तों का मरकज़, इज़्ज़तों का मरकज़, सब चीज़ों का मरकज़, जहाँ खूबियाँ हैं वो मरकज़ सैयद शुहदा अबी अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। खुद वजूद ही इज़्ज़त की वजूद है, जो इसके साथ मुतमस्सिक हो गया, मुतवस्सिल हो गया, उसने दुनिया और आखिरत की खैर हासिल कर ली। अब उसको ज़रूरत ही नहीं है, किसी ज़माने के यजीद की ज़रूरत नहीं है, किसी फासिक और फाजिर मलऊन की ताने को उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अपने मौला के साथ ऐसे वाबस्ता हो चुका है कि अब उसको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने कामों में मगन है, ज़िक्र में लगा हुआ है। मौला सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का वो बाबरकत और वो पुरअसरार ज़िक्र कि जिसकी वजह से सख्त मुश्किलात के बावजूद भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि किस तरीक़े से लोगों के बख्त झाग गए, लोगों को मंजिल मिल गई। ऐसे लोग जो मुशव्विश हुआ करते थे किसी दौर में, उनको तशवीश होती थी कि हमारा दीन, हमारा मज़हब ये सच्चा भी है कि सच्चा नहीं है। लेकिन सैयद शुहदा से जब वाबस्ता हो गया तो न उसके लिए किसी दलील की ज़रूरत है, न बुरहान की ज़रूरत है। वो अपने मौला से वाबस्ता हो गया, उसको दीन की समझ आ गई, दीन उसके लिए नूर की तरह सामने आ गया, बिल्कुल वाज़ेह, बिल्कुल अश्कार। अब उसको किसी मुफ्ती की फतवे की ज़रूरत नहीं, किसी मौलवी की वाज़ और नसीहत की ज़रूरत नहीं। वो ख़ुद नसीहत याफ्ता हो चुका है, उसका दिल मुतमईन हो चुका है। जैसे सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अय्यतुन नफ्स या अय्यतुहन नफ्सल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रज़ियतन मरज़िया, कि तू इस हालत में आ जा कि तू राज़ी रहे, तेरा रब तुझसे राज़ी हो, तू अपने रब से राज़ी रहे। हालत रज़ा में मेरे पास आ जाए, हालत रज़ा में आ जाएं, ऐसे राज़ी हो जैसे रज़ायत का हक़ हो, आजा मेरे पास। सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकीनन उसका चाहने वाले का भी यही मकाम है कि वो इस हालत में होता है कि रब उससे राज़ी है और वो रब से राज़ी है।
मोहब्बतों का मरकज़, इश्क का मरकज़, आशिकी का मरकज़। इंसान जब सब दरों से, सब दुनिया की हर जगह से जब मायूस हो जाता है तो वो दर सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पे आ जाता है। जैसे अर्ज़ कर चुके हैं कि ऐन ही उसी तरीक़े से है जैसे सैयद शुहदा के लिए कहा कि तू इस हालत में अपने रब के पास वापस आ जा कि वो आपसे राज़ी हो और आप उससे राज़ी हो, मकाम रज़ा पर हो। यकीनन यही चीज़ ख़ुद ज़ायरीन और अज़ादारान सैयद शुहदा के लिए भी है कि वो ऐसी हालत में होते हैं कि उनका परवरदिगार उनसे राज़ी है और वो अपने परवरदिगार से राज़ी है। दुनिया का कोई खौफ नहीं, कोई हरास नहीं, कोई उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता। किसी की जुर्रत ही नहीं कि उनके ऊपर प्रेशर को डाला जा सके, वो उनको कुछ कहा जा सके और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा भी देगा तो कोई उसको फ़िक्र नहीं, कोई उसको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। ये सिर्फ़ वो मकाम है जो आज़ादारान और ज़वार सैयद शुहदा अलैहिस्सलातो वसलाम के लिए हैं कि उनका दिल मज़बूत हो जाता है, दुनिया से बेफ़िक्र हो जाते हैं। जो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि दुनिया में 3 दफ़ा आपको तलाक़ देता हूँ, यकीनन सैयद शुहदा का जो ज़ायर है, सैयद शुहदा का जो ख़ास है, उसका मकाम भी यही है कि वो अपने मौला से बिल्कुल वाबस्ता है, उसको ज़रूरत ही नहीं है किसी दूसरे शख्स की, किसी दूसरे के फ़िस्क़ और फजूर लोग क्या कुछ कहते रहे, वो अपने मौला से वाबस्ता है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, आपकी आवाज़ बैन अल हरमैन करबला मुक़द्दसा में है, ज़ियारत और दुआओं का शर्फ हासिल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या बाबिदिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अब्द रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अब्ना अमीरुल मोमिनीन अब्दा सय्यिदुल वसीन, अस्सलामु अलैका या अब्ना फातिमातुज़ ज़हरा सय्यदा निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीदुल मज़लूम करबला, अस्सलामु अलैका रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहू, अस्सलामु अलल हुसैन, अस्सलामु अला अली इब्न हुसैन, अस्सलामु अला औलादिल हुसैन, अस्सलामु अला सहाबिल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या करीम करबला, या मेरा मज़लूम मौला, या मेरा प्यासा इमाम, मुझ पे अपनी नजरें करम फरमाए, मेरी दुआओं को कबूल फरमाए, मेरी सलाम को कबूल फरमाए, मेरी ज़ियारत को मकबूल फरमाए, मुझे अपना तवस्सुल अता फरमाए। या मेरे मौला, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। दुआ गो है कि तमाम मोमिनीन जो अपने मौला से वाबस्ता है, दुनिया से रहलत होने से पहले उनको करबला आने की तौफीक नसीब फरमाएं ताकि वो यहाँ पर आके क़ब्र हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिस शख्सियत के ऊपर अल्लाह ने तमाम इज़्ज़तें, तमाम शराफ़तें, तमाम बुज़ुर्गियाँ, तमाम नूर तमाम कर दिया, उस शख्सियत की ज़ियारत जो कि दीन और दुनिया में मुहिम है, ज़रूरी है। अल्लाह तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो है। आज फ़नी ख़राबी की वजह से मोमिनीन के हम कॉल्स अटेंड नहीं कर सके, लेकिन यकीनन दुआ गो है उन तमाम मोमिनीन के लिए। ज़रूरी नहीं कि वो हमारे प्रोग्राम में
شرکت کرتے ہیں نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں پروگرام کو نہیں دیکھتے۔ ضروری یہ ہے کہ جو سید شہداء کا وفادار ہے وہ ہمارے سروں کا سردار ہے۔ یقیناً مقام بہت اوپر ہے اس شخصیت کی۔ ہم تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، بالخصوص ان افراد کے لیے جن کے پاس ابھی تک وسائل فراہم نہیں ہو سکے جو کربلا سکے۔ ان سب مومنین کے لیے دل کے گہرائیوں سے بین الحرمین کربلا مقدسہ سید شہداء علیہ السلام اور مولا غازی سرکار علیہ السلام کے درمیانی علاقے میں اس وقت موجود ہے۔ ٹیلی ویژن سکرین پہ آپ گنبد طلائی حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مولا کو واسطہ دیتے ہیں حضرت شہزادے علی اکبر علیہ السلام، حضرت مولا غازی سرکار علیہ السلام۔ تمام مومنین کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ وہ بین الحرمین کربلا مقدسہ تشریف لائے اور اس دنیا سے رحلت ہونے سے پہلے اس فیض عظیم سے فیض یاب ہو سکے۔ ایک دعا جو ہر مومن کے وجود میں ہونی چاہیے، ہر مومن کی زبان پہ ہونی چاہیے، وہ ہے حجت دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے۔ ہم بھی بین الحرمین تمام مومنین کے نیابت میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ حسین